And yesterday in the House, you had Jagdeep Dhankar calling for a unified stance against forces threatening India's integrity and sovereignty. The integrity, sovereignty of the nation is sacred for us. We cannot allow any forces within the country or outside to sacrilege our unity, our integrity, and our sovereignty. Any challenge to the unity of the nation, to the integrity of the nation, from without or outside, requires all of us to offer united challenge. This is not a challenge to one section or the other. It is a challenge to our very existence. We as a nation are committed to fight these sinister forces, these forces that are inimical to India. This inimical force mechanism, a deep state that is evolving, is required to be neutralized by all of us. And in Parliament today, again, you saw ruckus in Rajya Sabha and Lok Sabha, meaning that again it was adjourned and there was no business that took place. The narrative is Adani versus Soros. Adani being raised by the Congress and Soros by the BJP. For the BJP, JP Nadda leading from the front in the Rajya Sabha came down heavily at the Congress, particularly Sonia Gandhi questioning her links with George Soros. The BJP, in fact, even in the Lok Sabha raised the issue with Kiran Rijiju attacking the Congress on this issue amid uproar and protests. Meanwhile, you had opposition MPs staging a protest led by the Gandhi siblings in Parliament yet again today, demanding a debate on the Adani issue. You saw them wearing masks yesterday, Modi Adani masks. Today, the opposition MPs carried bags that read Modi Adani bye bye. Upping the ante against the Modi government, opposition raised slogans in the Parliament, and they are also wearing T-shirts and jackets with the Modi Adani branding that they have been putting out. Priyanka Gandhi also has attacked the centre, accusing the BJP of stalling Parliament. The Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी co-chairperson कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत की संप्रभुता पर प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। Most ridiculous thing they could come up with. They're talking about some 1994. Nobody has any record of it. I don't know what they're talking. Nobody knows what they're talking about. The only reason they're doing it is they do not want to discuss it. सभापति महोदय, आपने अब शून्यकाल शुरू होगा, प्लीज आप लोग प्लीज बैठिए। शून्यकाल आ रहे हैं, मंत्री जी को सुनिए पहले। शून्यकाल सदन को स्टार्ट प्लीज। अपना हरकतों से शर्मसार कराया है। सर, जब ये यहाँ जितने मेंबर्स है पार्लियामेंट है, सब अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, सब अपना बात को संसद में रखना चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व जॉर्ज सोरोस के साथ तालमेल करके देश के खिलाफ काम करते हैं और फिर रंग बिरंगे नारा लगा के कपड़ा पहन करके और यहाँ तरह तरह का आपत्तिजनक बातें
संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है। इनके अधिकारियों मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है। हम अडानी जी और मोदी जी का दोस्ती कल भी हम जयपुर में देखने के लिए मिला था। साफ बैठे थे, प्रधानमंत्री जी खड़े थे और वही दोबारा भी दिखाना चाह रहे हैं कि मीन्स साहब और प्रधानमंत्री जी का दोस्ती का, अडानी जी और मोदी जी का दोस्ती का, और इस देश का पूरी धन मोदी जी अडानी जी का खाते में देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस 10 साल में मोदी जी अडानी जी का पूरा घोटाला में अडानी जी भरे हुए हैं और इतना पैसा बनाने में मोदी जी का पूरा सपोर्ट है। इसका हम लोगों का पहुंचाना चाहते हैं। If government want to run the house, they pass the bill in the din itself. How many times you witnessed it? Whenever we were in the bill, they used to do the proceedings. Are you witnessing this time? The government is telling opposition not allowing. We are ready. We are pleading to the government to allow to start the parliamentary proceedings. But government has already decided, no, don't run this house.